Everyone, welcome to yet another video of exam preparation for business environment. This is helpful for your MBA, BBA, business studies examinations for VMOU, IGNOU, and other universities. So let's get started. Uh, this is a video on open society. What is an open society? An open society refers to a type of social structure where the government is responsive, tolerant and transparent. तो जिस भी किसी सोसाइटी में जिस भी किसी स्ट्रक्चर में ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी which are who are responsive, tolerant and transparent. रेस्पॉन्सिव यानी कि वो जवाबदेह हो, टॉलरेंट यानी कि वो किसी भी चीज को सुनने के लिए ओपन हो एंड ट्रांसपेरेंट यानी कि उनके काम में पारदर्शिता नजर आए. सो इन सच सोसाइटीज इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. जैसे कि हम लोग सुनते भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का पार्ट होता है कि गवर्नमेंट इज रेडी टू रेस्पॉन्ड, टॉलरेंट tolerate and be transparent in for their people. So people can express their opinions, pursue their personal and economic goals, and participate in decision-making process without any undue restrictions. So अगर इस तरह का process है तो that is called an open society. Open society के key characteristics जैसे कि हमने बात की responsive governance, transparency, tolerance and flexibility and active civic participation. Responsive मतलब वो जवाबदेह हो, transparent मतलब they should be there should be a transparency in their work culture. उनका वर्क एथिक्स ऐसा होना चाहिए. टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबल. टॉलरेंस मतलब वो किसी भी चीज को टॉलरेट करे, सुनने के लिए तैयार हो. एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स दे शुड बी able to accommodate the different cultures and religions if required in the policy making. Next is active civic participation. So active civic participation means citizens play an active role in shaping policies and holding their governments accountable. So civic active civic participation means मतलब जहाँ पे लोगों की का पार्टिसिपेशन एक्टिव तौर पर हो, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो. ऐसा उन कंट्रीज में अक्सर देखा जाता है जहाँ पे रेफरेंडम्स होते हैं ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो वहां पे एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है. एग्जाम्पल जैसे कि मॉडर्न डे स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस है. स्वीडन गवर्नमेंट एंगेजेस इट्स सिटीजन्स थ्रू रेफरेंडम्स, जैसा कि हमने बात की वो रेफरेंडम और कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू अपनी अपने जो सिटीजन्स हैं उनको इन्वॉल्व करती है पॉलिसी मेकिंग में, ensuring that public opinion influences decision making. For instance, Sweden actively consults its people on environment policies. So environment policies पे उन कंसल्टेशन उन्होंने गवर्नमेंट लोगों से लिया है स्वीडन गवर्नमेंट ने. ट्रांसपेरेंसी. The country Sweden operates under the Freedom of the Press Act 1766. तो यहाँ पे Freedom of the Press Act 1766 applicable है, which is one of the world's oldest laws protecting transparency and access to public documents. Citizens can access government records to hold officials accountable. तो government records को easily वहाँ पे access किया जा सकता है to see the accountability of the respective person. Tolerance and flexibility. Tolerance and flexibility means Sweden is known for embracing multiculturalism and inclusivity, supporting immigration and protecting minority rights. तो minority rights को भी वहाँ अच्छे से protect किया गया है. Active civic participation. With high voter turnout and active public engagement in policy discussions, Swedish citizens play a vital role in shaping their government. सो एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन भी वहां पर देखने को मिलता है विद हायर वोटर टर्नआउट. नेक्स्ट एग्जांपल इज इंडिया में कैसा है. इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में भी रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस है. रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के एग्जांपल्स यहाँ पे केस पॉलिसी में देखने को मिलते हैं. सो द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू इन्वॉल्व सिटीजंस इन डिसीजन मेकिंग. फॉर इंस्टेंस प्लेटफॉर्म्स लाइक mygov.in, ये एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो हमें पता होना चाहिए एज एन इंडियन सिटीजन, जहाँ पे mygov.in के थ्रू the government enables citizens to directly engage with the government by providing suggestions for policy making, such as for the Digital India and Swachh Bharat initiatives. So इन पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पब्लिक इनपुट्स लिए हैं थ्रू mygov.in से. ट्रांसपेरेंसी. द इनेक्टमेंट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम आरटीआई भी बोलते हैं,
जो कि 2005 में लाया गया एक बिल है, एक पॉलिसी है, राइट टू इंफॉर्मेशन. इट अलाउज सिटीजन्स टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, एनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ensuring द गवर्नमेंट प्रोसेस आर ट्रांसपेरेंट. तो यहाँ पे भी है ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है विद राइट टू इंफॉर्मेशन पॉलिसी के थ्रू. Next is tolerance and diversity. So India is one of the most culturally diverse countries, embracing different religions, languages, and traditions. Its contribution guarantees the right to freedom of religion, speech, and association. So हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिलता है, क्या मिलता है? राइट टू फ्रीडम मिलता है, राइट टू रिलीजन मिलता है, राइट टू स्पीच मिलता है, राइट टू एसोसिएट मिलता है, फोस्टरिंग एन एनवायरमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी. सो दैट ऑल फोस्टर्स एन एनवायरमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी, जहाँ पे हम सभी को एकोमोडेट करते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सिविक पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं हम इंश्योर? प्रोग्राम्स लाइक जन सुनवाई जिस पब्लिक हेयरिंग भी जिसको बोलेंगे इंग्लिश में. सो जन सुनवाई इन रूरल एरियाज, ये रूरल एरियाज में जन सुनवाई के नाम से ज्यादा फेमस है और अक्सर उसी में होता है, रूरल एरियाज में ही होता है. वेयर सिटीजन्स कैन डायरेक्टली वॉइस देयर ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जहाँ पे लोग अपनी शिकायत, अपने सुझाव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे सकते हैं, एंड रिफ्लेक्ट देयर पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ गवर्नमेंट्स. और वहां पे गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन इस तरीके से वो इंश्योर करते हैं. नेक्स्ट इज जुडिशरी एज अ सेफ गार्ड. सो वी हैव जुडिशरी जो गुड जुडिशियल सिस्टम हु सेफ गार्ड्स ईच of the person of the country, citizen of the country. So who is the safeguard? Who is the guardian here? Supreme Court of India. Supreme Court of India and other courts ensures checks and balances on the executive and legislative branches. So executive and legislative में अगर कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है या कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो we approach to the judicial system to safeguard our rights. Landmark judgments such as the discrimination of homosexuality under Section 377 in 2018 showcase the judiciary's commitment to individuals' freedom. जैसे कि यहाँ पे जो धारा 377 जो कि बहुत फेमस चीज है, जिसको डिक्रिमिनलाइज किया गया सेम सेक्स रिलेशंस को, और जिसको होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं इन वन वर्ड में. सो उसको 2018 में डिक्रिमिनलाइज किया. उससे पहले वो क्रिमिनलाइज थी, यानी कि homosexuality used to be a criminal offense prior to 2018. तो वो अब क्रिमिनलाइज नहीं है. सो इस तरीके से जो इंडिविजुअल की जो भी अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंस है वो उसको परस्यू कर सकता है, और दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम.